Assalamu alaikum. My name is Dr. Hamda Saqib, and today we'll be discussing lecture number 18 of Behavioral Sciences. Today's lecture will be very interesting because we'll be discussing the psychosocial aspects of terrorism. What is terrorism? Psychosocial impact of it, profile of suicide bombers, techniques used by trainers to create terrorists, and characteristic behavior pattern seen amongst the terrorists. So, psychosocial aspects of terrorism. What is terrorism? Terrorism is a tactic of demanding the impossible and demanding it at gunpoint. किसी से ऐसी चीज़ का मुतालबा करना जो उसके लिए इम्पॉसिबल हो और ज़ोर ज़बरदस्ती से करना, कोर्सिव होना, फोर्सफुली करना, वो टेररिज्म के ज़ुमरे में आता है. So, what is terrorism? Definition: the unlawful use of violence and intimidation, especially against civilians, in the pursuit of political aims. के गैर कानूनी इस्तेमाल आप करो वायलेंस का, इंटिमिडेशन का मतलब है रोब का, जिस जो कि यूजुअली निहत्ती शहरी होते हैं ना, जिसे कहते हैं, उनके अगेंस्ट यूज़ करना किसी भी अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तहत, ये टेररिज्म की डेफिनेशन में आता है. इट इज़ अ वायलेंट एंड कोर्सिव इंटिमिडेशन स्ट्रैटेजी. इट एम्स टू जनरेट fear, panic, insecurity, hopelessness, and helplessness, as well as a mistrust in the societal institutions. That you don't trust the security forces of your country or any other forces that are present in your country when you are dealing with a situation like this. It is employed as a tool to challenge, destabilize, and destroy a country. Of course, we all know this because Pakistan has been through this phase. So हम सब इससे relate कर सकते हैं कि वाकई terrorism ने जिस तरह हमारी lives को impact किया है, it had a very strong impact on our lives economically, financially, emotionally, in all sorts of ways. Terrorism has challenged the physical, psychosocial, occupational, economic, and spiritual health of Pakistan for more than a decade now. It has affected all the geographic settings and socio cultural sections of the nation. Causes of terrorism can be: number one, the political causes. For example, एक नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप है एक कंट्री में जहाँ पे बादशाहत चल रही है, तो वहाँ के लोग अगर रिवोल्ट कर जाएं अपने मोनार्की के अगेंस्ट, तो वो भी एक कॉज हो सकती है. इम्प्रॉपर गवर्नमेंट का सेटअप हो या लॉ का एब्सेंस हो, उसमें भी लोग रिवोल्ट करके टेररिस्ट बन सकते हैं. एक्सटर्नल कॉजेज़ में से अफ़गान वॉर में यूएसए और रशिया का इन्वॉल्वमेंट था, तो अफ़गान वॉर ऑफ 1979 में भी, इसी तरह इरानियन रेवोल्यूशन. सोशो इकोनॉमिक कॉजेज़ में इनजस्टिस हो, इलिटरेसी हो, पोवर्टी हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, सबसे बड़ी बात, फूड इनसिक्योरिटी हो और डिससेटिस्फेक्शन हो अगर लोगों में, तो वहाँ पर भी टेररिज्म बहुत प्रिवेल करता है. एंड रिलीजियस कॉजेज़ इंक्लूड्स द रोल्स ऑफ मदरसाज एंड द रिलीजियस टॉलरेंस एज वेल. Psychosocial impact of terrorism. Terrorism has a negative health impact on the individual and on the society as a whole. It isolates individuals, families, communities, cultures, and even countries from others. It generates strong feeling of mistrust, depression, anxiety, and even the clinical consequences in the form of conditions like post traumatic stress disorder, जो कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं इसका मतलब क्या होता है. These include preference for isolation, intolerance for noise, and marked irritability and hypervigilance. ऐसे लोग जो कि इन चीज़ों से गुजरे होते हैं. Hypervigilance is a state of increased sensory sensitivity and increased intensity of behaviors that diffuse threats. For example, आप बहुत ज़्यादा विजिलेंट होते हो अपने सराउंडिंग्स के, अपने फैमिली मेम्बर्स के, आपको हर वक्त टेंशन होती है, तो ये भी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का नतीजा हो सकता है जो कि टेररिज्म के थ्रू हो. Survivors also experience periods of increased religiosity followed by alienation from religion and intermittent. कभी वो दीन से बहुत ज़्यादा जुड़ जाते हैं ऐसे लोग जो सर्वाइवर होते हैं, कई दफ़ा वो दीन से पीछे भी हो सकते हैं. ये उन पे उनके पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जिस तरह उन पे इम्पैक्ट करता है वो उन पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है. Survivors are at an increased risk for excessive smoking and misuse of tranquilizers, cannabis, opiates, and alcohol because they want to relieve the stress. They may also develop a tendency to undertake reckless actions, particularly while driving. कि वो अपने reckless attitude पे कंट्रोल नहीं कर पाते, जो चीज़ें वो पहले बहुत मैनरली करते थे अब वो बहुत recklessly करते हैं. A higher degree of greed, mistrust, jealousy, prejudice, need for revenge, paranoia, and intolerance towards minorities and certain cultures tend to prevail among the survivors of terrorist attack. Obviously, जब हमने देखा 9/11 पे जबकि इल्ज़ाम लगा था कि मुस्लिम्स ने करवाया, तो क्या हुआ था, एज एन अमेरिकन सिटीज़न लोगों ने क्या किया था, इस्लामोफोबिया फैल गया था, देयर वाज हेट्रेड टुवर्ड्स पीपल ऑफ कलर. तो क्या होता है कि वो
माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट इंटॉलरेंस हो जाता है, रिवेंज पैदा हो जाता है। तो जिन लोगों ने ये सर्वाइव किया होता है फिर वो उस ग्रुप के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाते हैं। These individuals are more prone to develop psychiatric disorders like PTSD, dissociative states, depression, and medically unexplained symptoms. Many survivors may undergo an enhanced resilience and even post-traumatic growth. Post-traumatic growth क्या चीज़ होती थी? एक अच्छी चीज़ होती थी कि आप बजाय डिसऑर्डर में जाने की आप उससे सीख के एक अच्छे, जैसे कहते हो, एक गुड ग्रोथ में आ जाते हो और आप फिर उस चीज़ के लिए कैंपेनिंग करते हो, काम करते हो। ये आपने पिछले लेक्चर में ये बात पढ़ी थी। आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम दीज फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंजरीज, ह्यूमन रिस्पॉन्स टू एक्सट्रीम एडवर्सिटी is normally distributed into three ways. एडवर्सिटी से मुराद किसी भी बुरी चीज़ के थ्रू जब आप गुजरे होते हो एडवर्स सिचुएशंस में, तो कैसा आप जैसे कहते हो रिस्पॉन्स होता है, या तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे या रिजिलियंस होगा। रिजिलियंस का मतलब होगा आप नॉर्मल लाइफ पे वापस आ जाओगे, या आप रिजिलियंस डिविडेंड हो जाओगे, का मतलब नॉर्मल लाइफ पे वापस भी आओगे और ज़्यादा अच्छे बेहतर तौर पर ज़िंदगी गुजारोगे, आप कंपेनिंग करोगे, आप में अवेयरनेस होगी, आप लोगों को बताओगे। इस तरह तो तीन किस्म के रिस्पॉन्स हो सकते हैं किसी भी एडवर्सिटी या एडवर्स सिचुएशन के अगेंस्ट। Reactions commonly seen in the survivors of a terrorist attack are why me, why not him? I want to I want to visit the site. I want to bomb them. They have a reason. Nothing can be done, leave us alone. I don't believe their version and I don't want to live here anymore। कि उन लोगों के सवाल होते हैं, जवाब होते हैं जो कि किसी भी टेररिस्ट अटैक के थ्रू गुजरे होते हैं। Profile of suicide bombers. They are born out of social settings challenged by poverty, illiteracy, ignorance, intolerance, disease, insecurity and justice. Mostly हम देखें पुअर कंट्रीज़ में ज़्यादा टेररिज्म क्यों है? क्योंकि इन वजूहात की वजह से there is a lack of adequate monitoring and falling out of regular schoolings adds to risk of falling prey. तो जो बच्चे स्कूल भी कंटिन्यू नहीं कर पाते वो ऐसे लोगों के ज़्यादा आसानी से हत्थे चढ़ जाते हैं जिनको यंग टेररिस्ट सुसाइड बॉम्बर्स की ज़रूरत होती है, बिकॉज उनकी ब्रेन वॉशिंग बहुत ईजी की जाती है। तो मोस्टली जो कॉमन प्रोफाइल होता है सुसाइड बॉम्बर का, उसमें यूजली वो मेल्स होते हैं। दे हैव अ विलिंगनेस टू डाई फॉर अ कॉज, दे हैव अ रिलीजियस फर्वर, दे हैव पुअर एजुकेशन, ब्लाइंड ओबीडियंस, poverty, belief in life after death, and immaturity. High risk factors that adds to this risk include homes with cultures of डोमेस्टिक वायलेंस, जहाँ पे अगर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया जाता है माँ बाप की तरफ से, वहाँ पे भी ज़्यादा ये देखा जाता है कि वो बच्चे टेररिस्ट अटैक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल, इमोशनल या सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। हिस्ट्री ऑफ डेलिंक्वेंसी, मतलब बचपन से ही उन्होंने ऐसे क्राइम्स करने शुरू कर दिए होते हैं जो कि मतलब माइनर क्राइम्स में आते हैं, लाइक माइनर क्राइम स्पेशली कमिटेड बाय यंग पीपल। तो उनके अंदर जो ऐसी टेंडेंसीज होती है ना, वो बचपन में ही निकलने आनी शुरू हो जाती है। कंडक्ट डिसऑर्डर होता है, दे डोंट फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सोसाइटी एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ इमोशनल आउटलेट्स लाइक म्यूज़िक, स्पोर्ट्स एंड जेंडर इंटरेक्शन। तो जो कि बहुत ज़्यादा आप देखते हो ना कि क्यों ऐसी कंट्रीज़ में ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके अलावा और कोई काम नहीं होता करने को। म्यूज़िक सुनना अलाउ नहीं है, स्पोर्ट्स के लिए कोई रिसोर्सेज ही मौजूद नहीं है, ग्राउंड्स ही नहीं है, इक्विपमेंट्स ही नहीं है, ना जेंडर इंटरेक्शन है। तो उनका माइंड बहुत ज़्यादा फिर ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है जहाँ पे उनको लगता है कि वो कोई चेंज ला सकते हैं अपनी लिविंग में या अपनी। और मोस्टली उन ऐसे छोटे बच्चों के दिमाग बहुत अच्छे ब्रेन वॉश हो सकते हैं। तो ऐसे जो टेररिस्ट जो होते हैं ना ट्रेनर्स, वो ऐसे बच्चों की बहुत ज़्यादा आड़ में होते हैं जिनको वो ईजिली मैनिपुलेट कर सकें और ट्रेन कर सकें। टेक्निक्स क्या यूज़ की जाती हैं टू क्रिएट टेररिस्ट? सम टेक्निक्स यूज बाय ट्रेनर टू क्रिएट सच टेररिस्ट आर रिचुअल कम्युनियन, के मतलब कि आप क्या करो कि रिचुअल्स के साथ उनको आप इंटरेस्ट डेवलप करो कि चूँकि आप एक मुसलमान हो, मैं आपको उस सेंस में बता रही हूँ कि जैसे वो कहेंगे, ठीक है, तो आपने अल्लाह के लिए अल्लाह को जान देनी है, तो आप काफिरों को मार के आपको जन्नत मिलेगी, इस तरह कहा जाता है उनको। उनसे जितना बॉन्ड किया जाता है, साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स की जाती है उनके ऊपर, साइकोलॉजिकली ब्रेन वॉशिंग की जाती है। कमिटमेंट ऑफ रीचिंग द हेवन उनसे कहा जाता है कि आपको जन्नत मिलेगी, हूरें मिलेंगी। स्टोरीज ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ एक्सप्लिसिट साइकोसेक्सुअल फैंटेसीज ऑफ एडोलेसेंट ईयर्स, कि आपको मिलेंगी 70 हूरें, तो अभी तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम अभी जान दो और वहाँ जाके इंजॉय करना, यहाँ पे तुमने अल्लाह के लिए काम करना है। तो क्या एक्सप्लिसिट साइकोसेक्सुअल फैंटेसीज के बारे में बता के उनको क्रिएट किया जाता है टेररिस्ट को। प्रोमिसेस ऑफ हाउसेज एंड हेवन्स, places in heaven, these are achieved through lectures, sermons, videos, etc.
Males between the age of 10 to 24 are the most common recruits of this because they are easy to brainwash. A suicide bomber is driven mainly by strong feelings of anger, revenge, and hatred through generating apathy, extensive training, and use of hallucinogen or drugs of abuse. Now, how do they train the bombers? जो आपको पहले ही बात बताई है, they brainwash them by describing they will go to heaven with the press of a button. They are doing jihad, and the people who are going to be attacked are all kafirs. This is how they are brainwashed. Characteristic behavior patterns which are seen amongst terrorists include the visible change in the earlier approach towards religion, cultural norms, values, and the world in general, social isolation and avoidance of routine family and societal events to become a recluse. मतलब कि अपनी फैमिली को अवॉइड करते हैं, सोसाइटी को अवॉइड करते हैं और रिक्लूजन में लोनलीनेस में इंटरेस्ट होते हैं. रिड्यूस्ड इंटरेस्ट इन लव्ड वंस, फैमिली, फ्रेंड्स और वर्क. ये टेररिस्ट की करेक्टरिस्टिक बताई जा रही है आपको. दे टेंड टू गेट इरिटेबल व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन देयर एब्सेंसेस, गिविंग अवे पर्सनल वैल्यूबल्स, मनी एंड बिलोंगिंग के अपनी सब चीज़ें बांट देते हैं. प्लेइंग वायलेंट वीडियो गेम्स, एन ऑब्सेशन विद एंड इंटरेस्टेड इन वेपन्स, नाइव्स, केमिकल्स एंड अदर पोटेंशियली डेंजरस ऑब्जेक्ट्स. दैट इज़ वाई बच्चों, छोटे लड़के आपके बच्चे होते हैं ना, उनको अवॉइड किया करें, वो गन्स वाली गेम्स ना खेलें, नाइव्स वगैरह में ना, इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट लें. इज़ अ टेररिस्ट सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस? येस, दे आर नोन टू एक्सपीरियंस पैरानॉइड एंग्जाइटी. पैरानॉइड आपको पता है ना क्या मतलब था? रिवाइज करें आप अपना पिछला लेक्चर. एनवी होते हैं दूसरों से, डिससेटिस्फाइड होते हैं, मैजिकल थिंकिंग होती है, दे थिंक दे हैव अ ओमनीपोटेंट अनलिमिटेड पावर होती है उनके अंदर, ग्रैंडियोसिटी फील करते हैं, नार्सिसिज्म होता है, एंड मैसिव डिप्रेशन फेस कर रहे होते हैं. साइकोसोशल मैनेजमेंट ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेररिस्ट एक्ट. क्या आपने करनी है अगर टेररिस्ट एक्ट किसी जगह पे हो गया, तो आप क्या साइको सोशल मैनेजमेंट करोगे उन लोगों की जो उस सीन में मौजूद थे. आपने मोबिलाइजेशन करना है साइको ट्रॉमा टीम्स का, इंटीग्रेशन ऑफ साइको सोशल केयर विद सर्जिकल केयर. अगर किसी बंदे को चोट लगी है, नहीं लगी, आपने साइकोलॉजिकल टीम को भी वहाँ भेजना है उस साइट पे जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है. लिंकिंग अप सर्वाइवर्स एंड डेड विद फैमिलीज, यूनिट्स एंड सेंटर्स. अपडेटिंग रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ डेड बॉडीज इफ दे हैव बीन टॉर्न अपार्ट. रिलीजियस एंड कल्चरल रिचुअल्स होनी है कि जिस भी जगह पे वो किसी भी रिलीजन को वो लोग फॉलो कर सकते हैं जो कि मर चुके हैं, तो आपने उनके अकॉर्डिंग उनको अलाउ करना है जो वो करना चाहें रिचुअल्स. ऑन गोइंग साइको सोशल सपोर्ट फॉर सर्वाइवर्स एंड द फैमिलीज. रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी आपने इंश्योर करवानी है. केयर ऑफ द करियर्स ऑफ द पीपल हु आर अफेक्टेड एंड लीगल सिक्योरिटी एंड सोशल सपोर्ट टू बी प्रोवाइडेड टू द सर्वाइवर्स एज वेल. Miscellaneous measures need to go into effect on the basis of available resources, expertise, and training. These include issues related to important human rights charter. This is important in the handling of suspects, treatment given to families of the suspects. कि मतलब क्या कि आपने इन सारी रिसोर्सेज को यूज़ करना है और ह्यूमन राइट्स के चार्टर के साथ आपने सस्पेक्ट्स को हैंडल करना है कि उनके साथ आपने कंसिडरिंग दैम ह्यूमन बींग्स फर्स्ट आपने उनके साथ डील करना है. उनकी फैमिलीज़ को क्या ट्रीटमेंट मिले वो भी. बरियल्स ऑफ टेररिस्ट विच आर किल्ड इन द ऑपरेशन, वो भी आपने करना है क्योंकि वो थे इंसान, उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई जिसकी वजह से ये वैसे काम में पड़े. मीडिया को हैंडल करना भी बहुत ज़रूरी है कि लोग इंतशार में ना आ जाएं. एंड ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन रिस्पॉन्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, कि आपने अपने ट्रायाज किया और उसके अकॉर्डिंग लोग भेजे कि कहाँ किसको कितनी ज़रूरत है. 82% of terrorism occurs in the 5 countries: Iraq, Afghanistan. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान, नाइजीरिया एंड सिरिया. पाकिस्तान में आजकल अब ये बहुत कम हो गया, पिछले 5-6 साल पहले तक ये बहुत ज़्यादा था. वी शुड बी थैंकफुल अबाउट दैट. थैंक यू वेरी मच. एनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. इंशाल्लाह इस वीक में हमारे लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे. हमारे टोटल बेटा 19 लेक्चर्स थे. उसके बाद मैंने ये सोचा था कि मैं आपका मॉक एग्ज़ाम लूँ, लेकिन मैंने सोचा कि अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी एक्सपेक्टेड है कि जून के फर्स्ट वीक में खुलेगी, तो हम इंशाल्लाह तभी अपना रिव्यू रिपीट लेक्चर्स रखेंगे 2-3 और मॉक एग्ज़ाम या जो भी क्विज़ छोटा सा होगा वो रखेंगे हम. तो बजाय कि मैं ये काम यहाँ पे करूँ, क्योंकि रिव्यू लेक्चर लेने का ना यूट्यूब पे कोई फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं फिर आप लोगों से फ़ीडबैक लेना मेरे लिए इस तरह मुश्किल होगा. हम कहेंगे एक लाइव जो होगा ना इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी, तो आपने हम इंशाल्लाह पहले 2-3 वीक्स सिर्फ इन कामों के लिए रखेंगे. आते साथ ही आपकी एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, इनकी आपने टेंशन नहीं लेनी. तो इंशाल्लाह इस वीक के एंड पे आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. और जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी हम रिव्यू लेक्चर्स भी रखेंगे और क्विज़ेस भी आपके इंशाल्लाह होंगे. तो तब तक इस पूरे मंथ जो आपका रहता है, एक मई का मंथ, आपने अच्छी तरह इन लेक्चर्स को रिव्यू करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है. एंड ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर क्वेरीज एंड योर प्रॉब्लम्स. थैंक यू वेरी मच.